ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 75,000 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಇವತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 75,000 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ. ಭಾರತ ಮೂಲದ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 8ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 75,000 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮೂಲದ ಪುರಾತನ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಉಳ್ಳಂತಹ ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಜಾದಿ ಕಿ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ. 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಾವೇಶ. ಹರಿದ್ವಾರದ ಯೋಗ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ. ಇವತ್ತು 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಸಾರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ, ಬರೀ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಆ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯೋಗ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನರು ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅನೇಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಸಾರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ. ಯೋಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. 2015ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕೊರೋನಾ ಕಾಟದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಯೋಗ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೇಶದ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹರಿದ್ವಾರದ ಯೋಗ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿದ್ವಾರದ ಯೋಗ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇವತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹರಿದ್ವಾರದ ಯೋಗ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
शरीर पसीने से एक बार अंदर बदला
भर के ऊर्ध्व हस्तासन नियम ले, व्रत ले कि हमें पाद हस्तासन प्रतिदिन कम से कम आधा से 1 घंटा योग करना। ಹರಿದ್ವಾರದ ಯೋಗ ಸಮಾವೇಶದ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಯೋಗ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹರಿದ್ವಾರದ ಸಮಾವೇಶದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಯೋಮಾನದವರು ಕೂಡ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಸಾರಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಹರಿದ್ವಾರದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ. ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾವೇಶ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. फिर आगे झुक गए जितना झुक सकते हैं, पाद हस्तासन और श्वास बाहर जब आगे झुकते हैं तो फिर दाहिने पैर पर बैठ गए दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर दाहिना पैर भी पीछे चला गया पर्वतासन और आगे झुक गए साष्टांग आसन, फिर उठ गए भुजंगासन, फिर बीच से उठ गए, फिर बायां पैर आगे, फिर दाहिना पैर आगे, फिर हाथ ऊपर पुनः ऊर्ध्वासन और फिर प्रणाम आसन। ऐसे 5 से 10 बार से प्रारंभ करके 25-50 बार सूर्य नमस्कार करने वाले भाई बहनों की संख्या करोड़ों में हो गई है। एक बार संख्या के साथ करेंगे, 1 2 3, ये सर्वांगीण व्यायाम है। 4 दाहिने पैर पर, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे ले आते हैं। जो इतना न कर पाए वो ताड़ासन तो कर ही सकते हैं। दोनों हाथ सिर के ऊपर, ताड़ासन फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होगी। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे, श्वास अंदर भर के रखेंगे और थोड़ी देर ठहरेंगे एक स्थिति में। योग प्रोटोकॉल के समय तो ये करना ही है हमें। अभी भी खड़े होकर के जब आसनों की शुरुआत ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन से करते हैं तो शरीर पर नियंत्रण भी आता है और श्वास छोड़ती भी नीचे है, प्राण शक्ति भी इससे सबल होती है। फिर से एक बार उठाएंगे ताड़ासन, लंबे गहरे श्वास भरते हुए, फिर नीचे आ गए। अब तिर्यक ताड़ासन के लिए पैरों में डिस्टेंस, दाएं हाथ ऊपर उठा लेंगे और श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुक जाएंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ दाहिनी ओर झुक गए, फिर बीच में रुक गए, फिर बाईं ओर झुक जाएंगे लेफ्ट साइड में, कोहनियां सीधी, और फिर बीच में रुक जाएंगे। दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे लेकर के अब बाएं पैर को उठाएंगे दाहिने पैर पर, वृक्षासन। दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर लेकर के एक रुकता के साथ, फिर हाथ नीचे, फिर दूसरा पैर ऊपर लेकर के आएंगे, एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, जंघा से पंजा लगा हुआ। दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठाएं,
और एक स्थिति में ठहर जाते हैं। इससे शरीर का संतुलन बनता है, एकाग्रता बढ़ती है। और जैसे जैसे हमारे शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर हमारा नियंत्रण आता जाता है, वापस आ जाए, वैसे वैसे आत्मानुशासन में हम ढलते चले जाते हैं। अब दंड बैठक, ये भी शरीर को फौलादी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जरा कम से कम 1-2 दंड तो सबको आनी चाहिए। बिना दंड के उद्दंडता दूर नहीं होती है। बहुत तरह की उद्दंडताएं हैं। एक साथ, सब मेरे साथ साथ करेंगे। 1 नीचे, 2 ऊपर, 1 नीचे, 2 ऊपर। अब किसी में अधिक बल है तो ऐसे भी कर सकता है। ये अब इसके लिए थोड़ा शरीर पर नियंत्रण जरूरी है। और एक है राम मूर्ति दंड। दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे नीचे जाएंगे। धीरे धीरे मेरे साथ साथ नीचे आइए और धीरे धीरे ऊपर आइए। जो जितना नीचे जा सकते हैं, एड़ियां खड़ी हो जाती हैं, एड़ियों को टच करेंगे रितंभ से और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ इससे फौलादी बन जाता है शरीर, वापस आ जाते हैं। और एक साथ 10-20 बैठक करनी है तो एक तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। एक साथ 25 अभ्यास कर लिया। अब ऐसे आ जाइए। ये परंपरागत व्यायाम हमारे मजबूती देने के लिए शरीर को बहुत जरूरी है। जिनसे ना हो पाए वो बैठ के बटरफ्लाई करें। ये पहला अभ्यास दंड का। 1 2 3। दूसरा दंड का अभ्यास, नीचे गए, ऊपर उठे, फिर वापस आए। और ऐसे ये भी हम पूरे देश को व्यायाम सिखाना चाहते हैं, जिससे कि जिनकी जरूरत ही ना पड़े। ये ऐसे रिलैक्स पोज ये है। और फिर दोनों हाथ की उंगलियां अंदर की तरफ कर लेते हैं। पूरा देश आत्मनिर्भर बने, जिनकी भी निर्भरता की जरूरत नहीं है। अपने शरीर में ही इतना भार है, उसी को ठीक से उठा ले तो हम सारी दुनिया का भार उठा सकते हैं। दोनों हाथ पार्श्व भागों में अंदर की ओर, अंगुलियां नीचे गए, ऊपर उठे, एक साथ ऐसे। ये अभ्यास है तीसरा दंड का। चौथा दंड का अभ्यास इसको बोलते हैं हनुमान दंड। दाहिना पैर आगे आया, आगे झुक गए, ऊपर उठ गए, वापस। बाया पैर आगे आया, नीचे झुके, ऊपर उठ गए। एक श्वास में एक अभ्यास। गुरुकुल के हमारे छोटे छोटे बच्चे ये अभ्यास करते हैं। अब पैर पीछे सीधे और दाहिना पैर पीछे ऊपर उठेगा। वृश्चिक दंड। एक हनुमान दंड के बाद, पार्श्व दंड के बाद 2 और 3। 1 2 3। फिर ये पैर ऊपर से दूसरी तरफ चला जाता है। ऐसे ये अभ्यास ऐसे किया। और फिर पार्श्व दंड। दाहिना पैर बाईं तरफ गया और नीचे झुक गए, फिर उठ गए, फिर दूसरी। ऐसे ये पार्श्व दंड है। इस प्रकार ये पार्श्व दंड शरीर को मजबूती देने के लिए। अब चक्र दंड बहुत ही महत्वपूर्ण है।
चक्रदंड के लिए पैर सामने से घूमता है और ऐसे दूसरी तरफ से भी ऐसे, इतनी स्फूर्ति हो हम एक अभ्यास को 5-10 बार कर सके बिना रुके। ऐसे ऐसे, यह चक्रदंड। धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ेगा और चक्रदंड के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है पलट दंड। ऐसे नीचे गए फिर ऊपर उठे, वापस आ गए और मार दिया ऐसे पलटी और ऐसे वापस आ जाते। और अब शेर दंड में तो बहुत अधिक संतुलन की अपेक्षा है। दोनों हाथों पर पूरे शरीर के भार को उठा लेते हैं और ऐसे संतुलन बनाते हैं। ऐसे संतुलन बनाया ये। और सर्पदंड तो सभी करेंगे, सभी पैर पीछे कर लेंगे। इसको तो रोगी निरोगी योगी सब कर सकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार से शुरू करें। मैं गुरुकुल में 5 मिनट में 500 बार किया करता था। ये मेरा पिछले 40-45 सालों का अभ्यास है। ऐसे अपने शरीर को बलवान बनाने का अभ्यास होना चाहिए। अब मिश्र दंड करते हैं। 1 2 1 2 3 1 2 3। अब इसको थोड़ा फास्ट किया इस प्रकार से, ये ऐसे ऐसे। रिलैक्स। अब बटरफ्लाई करेंगे। हमारा शरीर सधा हुआ। मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, अथ योगानुशासनम योगश चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूप्य अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। दोनों पैरों को तलवों से मिला लिया, फिर दोनों हाथों को कंधों पर रख लिया और यूं गोल गोल घुमा लिया। ऐसे पैरों को हिलाया, पाद संचालन, ऐसे कोहनियों से बड़ा शून्य बनाया। ये स्कंध संचालन, पाद संचालन, स्कंध संचालन। ऐसे इससे एक एक अंग प्रत्यंग हमारा खुल जाता है। अब अपने पूरे शरीर को हमें अनुशासन में ढालना है। इंद्रियों को, मन को, प्राण, विचार, भाव, संवेदना को। और जिसका शरीर, इंद्रिया, मन, विचार, प्राण, भाव, संवेदना सध जाते हैं, यही तो जीवन है। अब दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे और सामने खोल करके दोनों पैरों को दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं हाथ पीछे ऊपर और फिर दूसरी ओर से इस तरह से लगातार सातत्य के साथ करेंगे। योगा फॉर ओबेसिटी। आधी से ज्यादा दुनिया की आबादी परेशान है मोटापा। लंबे लंबे श्वास। ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक हमें करना है। अब दोनों हाथ सामने। मोटापा के लिए
आगे पीछे ऐसे पूरा 10-20 बार से शुरू करके, मैं कहता हूं शत सहस्र साधना, हम एक दिन में 1 से 2 किलो तक वजन घटाते हैं। यही अभ्यास कराते, सब करेंगे। ये इतनी इजी है। घर में बैठे भी आज करोड़ों करोड़ों भाई बहन देश के लगभग सभी चैनलों पर एक साथ ये योग का अभ्यास कर रहे हैं। और हमारा मकसद है इस देश को मोटापे से मुक्त बनाना, मधुमेह से मुक्त बनाना, सभी रोगों से मुक्त बनाना, सभी व्यसनों से मुक्त बनाना, सब दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से मुक्त बनाना। योग वो तत्व है जो हमारे जीवन को रोगों से, विकारों से मुक्त बना देता, सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से, सदाचार से युक्त बना देता। ऐसे ये 2 अभ्यास तो सभी कर सकते हैं बैठ करके। और अब सभी सीधे लेट जाएंगे, मंच की तरफ सिर कर लेंगे, दूसरी तरफ पैर, और जो दोनों से कर सके दोनों से, नहीं तो एक एक से अर्ध हलासन करेंगे। अभी हम योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज दे रहे हैं, थेरापीटिक योगा प्रैक्टिस। राष्ट्रीय स्तर पर यद्यपि एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस तय की गई है, वह योग में प्रवेश मात्र के लिए है। जब किसी को मोटापा है तो उसको 100-200 बार ये करना पड़ेगा, और जो 100-200 बार ऐसे अर्ध हलासन करेगा। मैं भोर में 5 बजे से लेकर के लगभग 10 बजे तक इसी योग के अनुष्ठान में रहता हूं, और मैं चाहता हूं कम से कम आधा से 1 घंटा आज इंटरनेशनल योग डे पर योग करने का संकल्प लें। अपने अपने आवश्यकता के अनुसार एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। मात्र अकेला योगासन नहीं, केवल प्राणायाम नहीं, केवल ध्यान नहीं, केवल भजन कीर्तन नहीं, अर्ध हलासन, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक पैर से, दोनों पैरों से। जो दोनों से न कर सके वो एक एक से कर ले। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, योगासन, प्राणायाम, ध्यान का समन्वित अभ्यास, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। योग, यह मंच पर यज्ञ भी हो रहा है, यह भी एक बहुत बड़ी थेरापी है। यह मात्र साधना उपासना पद्धति ही नहीं, यह चिकित्सा पद्धति भी है। यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद की जीवनदायिनी जड़ी बूटियों से चिकित्सा। एक एक पैर या दोनों पैरों से पादवृत्तासन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आयुर्वेद से चिकित्सा, रस, रसायन, चूर्ण, भस्म, पिष्ट, पाक, अवलेह, सबका एक साथ हमने समन्वय किया। पादवृत्तासन के बाद द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से या एक एक पैर से द्विचक्रिकासन। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, और आयुर्वेद में भी पंचकर्म, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, अक्षि, तर्पण, कर्ण, पूर्ण और बस्सी जैसी प्रक्रियाएं। रक्त मोक्षण, जिससे एक ही दिन में 10-20 मिनट में हम 10-20 साल पुराने दर्द का खात्मा कर देते हैं। ये बड़ी बात है। 10-20 साल पुराना दर्द 10-20 मिनट में खत्म हो जाए, इसके लिए हम रक्तमोक्षण करते हैं। घुटनों में, पैरों में, एड़ियों में दर्द है, वात कंटक बोलते हैं। जोड़ों का दर्द बोलते हैं, आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो जैसे दर्द, ट्राइजेमिनल नेuralgia जैसे दर्द, वेरिकोज वेन्स। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। हम 10-20 साल पुराने दर्द को 10-20 मिनट में खत्म करते हैं, और ये मात्र लंबे लंबे श्वास, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से लगातार करते रहे। 10-20 बार से शुरू करके 100, 200, 500, 1000 बार तक हम कराते हैं। एक राउंड पूरा हुआ तो फिर दूसरा शुरू हो गया। जो थक जाए